Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. That is the BSO Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very tech startup. And in this video, we're going to start with Sale of Goods Act. So हम पिछली वीडियोस में या जो भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी एवरी डे वहां पर हम वी आर डीलिंग विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड इन द अपकमिंग वीडियोस वी वुड आल्सो बी डूइंग पार्टनरशिप एक्ट वी वुड आल्सो बी डूइंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट and in this video we would be doing of course sale of goods act so and also we are also going to cover motor vehicles act. So over a period of time we are going to cover different acts and different laws from the bare acts itself. And especially these videos, if you are somebody, let's say you are preparing for CLAT or you're preparing for any law entrance exam, if you want to watch these videos, because yes, watching these videos would help you understand how to decode passages again for CLAT, you can do that. But if you're somebody who is just a law student and let's say you want to just ace your exams, or maybe you weren't there in the classes when these topics were being taught, or you have doubts in these topics, so we are there together now and we would be dealing with these acts, right? सोगा सबको डिफिकल्ट लगता है, समझने में सबको डिफिकल्टी आती है. So today we are going to understand this. We are going to read each and every section. We are also going to do important case laws. Whatever syllabus or whatever things that I would be abiding by, those would be strictly from the due syllabus. So if you want to get the due syllabus, or if you do not know from where to download, you can just go onto the internet and type out case material faculty of law. You will get that, right? So whatever case laws again that I would be picking up, whatever sections I would be picking up, the syllabus etc., would be specially from the due केस मैट. एंड ऑल्सो ऐसा कुछ वो नहीं है कि ड्यू चीजें कवर नहीं कर रहे. ड्यू इज कवरिंग एवरीथिंग, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर एवरीथिंग. जो कुछ चीजें बच गई हैं दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर, बट मेजोरिटी इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे गोइंग टू कवर एवरीथिंग. सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट? द वेरी फर्स्ट थिंग वाज, जब आप पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ोगे, जब हम पढ़ेंगे इनफैक्ट हम देखेंगे कि एक पॉइंट पर पार्टनरशिप एक्ट सोगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करते थे. एंड इट वाज सोली बिकॉज ऑफ द अगेन द ईज ऑफ डिवाइडिंग, especially if you would get different areas like partnership or maybe goods and maybe contracts. So obviously it was easier to divide acts into parts because it would pertain to different things altogether, right? So जो भी unrepealed sections हैं, we are going to start from the definitions first. But जो भी unrepealed sections हैं, आप अगर section 3 देखोगे, जो भी unrepealed sections of the Indian Contract Act, save in so far as they're inconsistent with the express provisions of this act, shall continue to apply to contracts. So जो भी unrepealed sections हैं of the Indian Contract Act, of course which have not been repealed, जो रिपील हो चुके हैं वो है सोगा और पार्टनरशिप, क्योंकि उनके अब नए ऑल टुगेदर एक्ट्स बन गए हैं. तो जो करंट प्रोविजंस हैं ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो अप्लाई करेंगे टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑल्सो. लेकिन अगर कुछ ऐसे प्रोविजंस है सोगा में जो क्या कर रहे हैं, ओवरराइड करते हैं, या जो इनफैक्ट या विच ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट? लाइक लेट्स से कोई पर्टिकुलर चीज है जिस पर सोगा इज गिविंग अ वेरी स्पेशल थिंग ऑल टुगेदर over the Contracts Act, which is going to give something which is very generic. So SOGA is going to prevail. So obviously, always SOGA is going to prevail over contracts when we are talking about contracts pertaining to movable property or goods. So SOGA exclusively is for movable property. For immovable property, we have Transfer of Property Act, which we are going to read in the upcoming sessions. Okay. पहला हम आते हैं definitions. Doing definitions very important. Most of the teachers do not cover definitions, but we are going to cover definitions. ठीक है? And we are not going to cover all the definitions together, but we are going to cover a few definitions, and after that when we are going to hop on to sections, then we are going to read the definitions because it would make more sense. ठीक है? अब बायर कौन होता है? बायर एक ऐसा व्यक्ति होता है who buys and agrees to buys goods. आप बोलोगे बाइस ठीक है, ये agrees to buy क्या होता है? सिमिलरली ये तो हमने 2 clause 1 देखा. जब आप देखोगे 2 clause 13, आप देखोगे seller is a person who sells और he agrees to sell the goods. अब ये sells, agrees to sell या buys या agrees to buy क्या होता है? जब आप हम agreements पढ़ेंगे ना, okay, अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं. देयर इज सेल एंड देयर इज अग्रीमेंट टू सेल. सो व्हेन आई से अ बायर इज बाइंग प्रोडक्ट्स, इट वुड कम अंडर सेल. व्हेन आई से अ बायर इज अग्रीइंग टू बाय प्रोडक्ट्स, इट वुड कम अंडर अग्रीमेंट टू सेल. व्हेन आई वुड से दैट सेलर इज सेलिंग प्रोडक्ट्स, इट वुड कम अंडर सेल. व्हेन सेलर इज अग्रीइंग टू सेल प्रोडक्ट्स, इट वुड कम अंडर अग्रीमेंट टू सेल. एज सिंपल एज दैट. अब इसका मतलब क्या होता है देखो, बिकॉज सेल का मतलब होता है सिंपल, सामान बेच रहे हो. व्हेन यू आर सेलिंग थिंग्स, लाइक लेट्स से आई एम लेट्स से आई एम सेलिंग टी. ओके, मैंने चाय बेची, कैंटीन में जाओगे तो चाय बिकी, दैट इज सिंपल सेल. अग्रीमेंट टू सेल इज मैं चाय बेच दूंगा, आई हैव डिसाइडेड, दिस इज अग्रीमेंट टू सेल. और आप ये बाद में बेचोगे,
You're not going to sell right now. You're going to sell after some time. So this is what is agreement to sell. जब आप बाद में बेचते हो and sale is on the spot. Just this is the difference. And आप देखोगे sale could be absolute, it could be conditional. Absolute मतलब ठीक है मैं अभी आपको let's say चाय दे रहा हूँ, ठीक है, और it could also be conditional sale. Let's say मैं चाय आपको तभी लूंगा जब आप अपना खुद का पेपर कप लाओगे, मैं तभी आपको चाय दूंगा. दिस इज गोइंग टू बी कंडीशनल. मैं जब तक ये सेल खत्म नहीं होगी, सेल एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब तक आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे खुद का कप लाने की. ठीक है, ओके. सो जो सेल है, इट इज बाय अ सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस. प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप सोगा पढ़ते हो, सोगा में गुड्स पढ़ते हो, अगेन गुड्स की डेफिनेशन है, हमने गुड्स से चालू नहीं करा. एनीवे वी आर गोइंग टू डू इन दिस वेरी लेक्चर ओनली. जब आप गुड्स के बारे में बात करते हो ना, तो आप देखोगे कि गुड्स इज जस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी एंड गुड्स फॉर अ प्राइस. जो गुड्स है ना, उनकी वैल्यू कंसिडरेशन से रखी गई है. सो व्हेनेवर यू वुड बी एक्सप्लेनिंग इन एग्जाम गुड्स के बारे में, ऑलवेज मेंशन सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच टॉक्स अबाउट कंसिडरेशन. व्हाट इज लॉफुल कंसिडरेशन, व्हाट इज अनलॉफुल कंसिडरेशन, एंड ऑल्सो consideration expressly prohibited by law, consideration which is not expressly prohibited by law, right? So जो भी चीजें हैं ना अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक मोरालिटी, तो हम बोलते हैं कि वो कंसिडरेशन अनलॉफुल है और वो कंसिडरेशन वैलिड ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड ही नहीं है. अब यहाँ पर सेम चीजें कंसिडरेशन की गुड्स पर भी लगती हैं. ठीक है, तो जो गुड्स के प्रिंसिपल्स है ना, वो कंसिडरेशन के प्रिंसिपल्स पे चलते हैं एज पर सेक्शन 23. ये लिख देना. ठीक है, आप बोलते हो कि कंसिडरेशन एडिक्वेट ना भी हो तब भी चलेगा. सिमिलरली गुड्स के लिए भी कंसिडरेशन एडिक्वेट ना हो चलेगा, फिर भी बस कुछ ना कुछ वैल्यू तो हो. ठीक है, फ्री में तो नहीं बिक रहा है. अब देयर कुड भी, चलो पहले हम ना गुड्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. एंड आई श्योर यू दैट आफ्टर रीडिंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग और ये सारे लेक्चर्स देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड यू वुड डेफिनेटली टॉप योर एग्जाम्स. गुड्स, गुड्स मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी. ऑफ कोर्स इमूवेबल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं. अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स. ठीक है, एक्शनेबल क्लेम्स, ओके, एंड मनी. ठीक है भाई, अदर देन, ओके फाइन, मनी. मनी इज व्हाट? मनी इज नॉर्मल पैसे. 500 का नोट देखा, 100 का नोट देखा, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड, इट हैज अ लीगल टेंडर, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, सो इट इज नॉट अ गुड, राइट? सो जब भी आप बोलते हो गुड्स में टू थिंग्स आर नॉट देयर, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी. लेकिन मैं बोलूँ 2000 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट के अब लीगल टेंडर खत्म हो चुका है उसका, इट इज नो लॉन्गर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, सो इट इज अ गुड. ठीक है, तो मनी इज व्हाट? समथिंग हैविंग अ लीगल टेंडर, दैट इज नॉट अ गुड. ठीक है, लेकिन व्हेन आई से 2000 रुपए का नोट या 1000 रुपए का नोट जो बंद हो चुका है वो बिक सकते हैं. इसलिए यू आर गोइंग टू सी ऑन इंस्टाग्राम की 2000 का नोट है, ले लो, 1000 रुपए का नोट है, इसमें एलिजाबेथ का नोट है, इतने लाखों में बिकेगा. वैसे वो बिकता नहीं है, बट अगेन वो इसलिए बेचने को बोल रहे हैं क्योंकि उनका लीगल टेंडर खत्म हो गया, वो एक गुड है. एक्शनेबल क्लेम्स मतलब अनसिक्योर्ड डेट, जो ये सिर्फ सिविल एक्शंस में या फिर सिविल सूट्स में एक्शनेबल है, जैसे इंश्योरेंस. ठीक है, अनसिक्योर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट कोई कोलैटरल ना दिया हो, जो बिना कोलैटरल के लोन हो, दैट इज एक्शनेबल क्लेम. एनी काइंड ऑफ एक्शनेबल क्लेम इज नॉट अ गुड. ठीक है, तो एंड इंक्लूड स्टॉक शेयर्स, इट इज बिकॉज ऑफ द डिजिटल मूवेबिलिटी. स्टॉक्स एंड शेयर्स, अब मैं बोलो डिबेंचर्स. बिफोर अलॉटमेंट डिबेंचर्स आर नॉट गुड्स, बट आफ्टर अलॉटमेंट डिबेंचर्स आर गुड्स बिकॉज ऑफ द डिजिटल ट्रांसफरेबिलिटी. ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स. अब एक और चीज आती है, वन इज आपका ग्रोइंग क्रॉप्स एंड द अदर वन इज इम्बेलिमेंट्स. ओके, व्हाट इज एन इम्बेलिमेंट? ठीक है, तो बेसिकली अब ग्रोइंग क्रॉप्स में व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोइंग, ठीक है, एंड व्हेन आई से इम्बेलिमेंट्स, ये दोनों चीजों में यू कैन ऑब्वियसली राइट इट. ग्रोइंग क्रॉप्स में क्रॉप्स दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन एंड वंस दे आर फुल्ली ग्रोन देन ओनली आई कट देम, राइट, और दे फॉल डाउन. ठीक है, दिस इज अ ग्रोइंग क्रॉप. इम्बेलिमेंट्स इज व्हेन आई हैव एन इंटेंशन टू सेवर देम. इसका एक केस पढ़ेंगे अभी हम. दैट इज नोन एज एन इम्बेलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल मेरा है कि मैं 12 साल बाद एक पेड़ को काट दूंगी. आई हैव फॉर्म्ड अ कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज गोइंग टू बी नोन एज एन इम्बेलिमेंट. ठीक है, वेन हैव इंटेंशन टू सेवर थिंग्स लाइक बैम्बू हो सकता है, शीशम ट्री हो सकता है, सैंडलवुड हो सकता है, इसका मेरे को फर्नीचर बनाना है. आई हैव एन इंटेंशन टू सेवर देम एज कम्पेयर टू एप्पल ट्री. एप्पल ट्री में एप्पल्स बनने के बाद खुद गिरेंगे. दिस इज गोइंग टू बी नोन एज अ ग्रोइंग क्रॉप. ग्रास,
things attached to forming part of land which are agreed to be seaworड मतलब काटे जाएंगे before sale और under the contract of sale. सिंपल डेफिनेशन है गुड्स की. ठीक है, गुड्स में हमने वो सारी चीज मनी वगैरह डिस्कस कर ली है. ठीक है, अब आप आ जाओ. ओके, व्हाट इज डिलीवरी? डिलीवरी इज ट्रांसफरिंग ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनरशिप, रिमेंबर इट इज अबाउट पोजेशन. एंड गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट. डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है? अभी बेचने लायक है. मतलब मैं बोल रही हूँ कि मैं 1 किलो शुगर बेचूंगी. अब अगर मैं बोलूँ मेरे पास शुगर की बोरी है और मैं बोल रही हूँ मैं 1 किलो शुगर बेचूंगी, इज इट इन डिलीवरेबल स्टेट? नो. जब तक मैं उसको प्लास्टिक के पैकेट में डालूंगी, उसको वे करूंगी कि वो 1 kg का है या फिर उसकी नेट वेट 950 ग्राम है, मैं तभी उसको दे पाऊंगी, अदरवाइज नॉट. इट हैज टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट. इट शुड हैव अ सील ऑफ or stamp of the brand. It should be in a packet, then only it would be in deliverable state. They are in such a state that buyer would be under the contract to take the delivery of them. If I bring a bori of sugar to the buyer and ask the buyer to take this from me, the buyer is not going to take. The buyer is not under the obligation to take that. Why? Because it is not in the deliverable state. अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, इसमें लोगों को होती है बहुत दिक्कत कि मैम क्या मतलब है इसका. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स मीन्स इंक्लूडिंग अ बिल ऑफ लैडिंग. ठीक है जी. बिल ऑफ लैडिंग इज फॉर शिप्स. ठीक है. डॉक वारंट इज फॉर डॉक्स. देन वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, इट इज फॉर वेयर हाउस. वॉर्फिंगर सर्टिफिकेट, इट इज फॉर अ वॉर्फ. रेलवे रिसीट इज फॉर रेलवे. मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट मतलब अगर एक सामान अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से गया है, जैसे शिप, रेलवे, वॉर्फ, डॉक एक्सेट्रा. वारंट या फिर नॉर्मल सिंपल सा ऑर्डर फॉर डिलीवरी, और एनी डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस as a proof of possession or control of goods. Whenever I say somebody having document of title to goods means somebody has possession, not necessarily ownership. Remember, I'm repeating this once again. Whenever I say somebody has document of title, that person only has possession of those goods, not ownership. Possession is the key in this, not ownership. This is the thing that a lot many students are always confused about. Fine. ओके. अब आगे आप आ जाओ. अब आती गुड्स. गुड्स क्या सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स है कि मैं बोलूँ कि जस्ट मैं अभी अभी सारी केन से शुगर निकाली है, दिस इज अ गुड. बट इट इज ऑल्सो फॉर फ्यूचर गुड्स. मेरी शुगर, अभी मेरे पास शुगर केन उग रही है, अभी मैंने शुगर एक्सट्रैक्ट नहीं करी, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं शुगर बेचने का, कर सकती हूँ. गुड्स के एम्बिट में फ्यूचर गुड्स भी आते हैं जो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होंगे, प्रोड्यूस होंगे या एक्वायर करे जाएंगे बाय सेलर. भाई ठीक है जी. प्राइस इज व्हाट? इट्स मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स. प्रॉपर्टी तो ओके, प्रॉपर्टी इज नॉट रेलिवेंट. स्पेसिफिक गुड्स, ओके, स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई डील विद variety of oils. I deal with deal in groundnut oil. I deal in palm oil. Then I deal in let's say refined sunflower oil, and I form a contract with buyer, and the buyer says I want 200 ml of oil, right? Okay, 200 liters of oil, let's say. So this is not specific good. Specific good would be because I deal in a lot many goods, I want 200 liters of groundnut oil. This is specific because it is very specific. It is a good which is identified as compared to simple oil जो identified नहीं है. ठीक है, समझ में आया? हाँ जी. आगे बढ़ते हैं. हु इज अ मर्केंटाइल एजेंट? मर्केंटाइल, मर्चेंटाइल, जो भी बोलना है बोलो. हु इज अ मर्केंटाइल एजेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, बट अभी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, एटलीस्ट अब इस लेक्चर में तो. ठीक है, ओके फाइन. तो ओके, सेल और अग्रीमेंट टू सेल, बेसिक बेसिक बातें आपको पता चल गई हैं. एम्बेलिमेंट्स का एक केस लिख दीजिए, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इसमें एक औरत ने एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा अपने पति के साथ. उसके पति की जो जमीन थी, वो जमींदार थे उसका पति, और ये बात थी कि 12.5 इयर्स बाद वो पेड़ काटेगी. अब क्या बोला गया भाई, धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिपेंडेंस खत्म हुई, डेवलपमेंटल रिफॉर्म्स आए, गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करनी चालू कर दी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एंड जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया. गवर्नमेंट ने उसके पति की भी लैंड एक्वायर कर ली. अब भाई इसका क्लेम था मेरे को तो 12.5 इयर्स बाद पेड़ काटने थे अपने पति की जमीन पर, तो मेरा तो राइट वायलेट हो गया. इधर कोर्ट ने बोला जी नहीं, आपका कोई राइट वायलेट नहीं हुआ क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का.
बोली रहे रजिस्ट्रेशन थोड़ी करवाऊंगी मूवेबल प्रॉपर्टी का, मेरे गुड्स जो मेरे पेड़ हैं, क्योंकि मेरा इंटेंशन टू सिवर है जो हमने पढ़ा है अभी गुड्स में, तो वो तो गुड्स है मूवेबल प्रॉपर्टी। जब भी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात आती है तो मूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा है तो आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। दिस इज अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, 1908। तो दिस इज अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट दैट वी आर, जिसको पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, बट दिस इज द क्लॉज जहां पर ये डिस्प्यूट चल रहा था। कोर्ट ने बोला आपने तो रजिस्टर नहीं करा है, उसने बोली रजिस्टर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कराते। कोर्ट ने बोला आपने 12.5 ईयर्स तक उस पेड़ को उगाया, तो इसका मतलब 12.5 ईयर्स तक वो पेड़ हिला नहीं अपनी जगह से, मतलब वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी था, वो एक मूवेबल नहीं था। और वैसे यूजुअली इम्बेलिमेंट्स में दो स्टेजेस होती हैं। एक है जब पेड़ को नरिशमेंट मिल रहा होता है, वो नरिशमेंट फेज। वो नरिशमेंट फेज के टाइम पर पेड़ एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड कटने के टाइम पर पेड़ एक मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है, क्योंकि वो बन गई पूरे पेड़। इसलिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नरिशमेंट इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर यू रिक्वायर रजिस्ट्रेशन ऑफ 100 रुपीज, एंड आपका कोई राइट नहीं है उस लैंड पर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एक और केस है विच इज, अच्छा, जब भी whenever you are writing a question also write section 3 clause 26 of the general clauses act. It basically talks about immovable property. अब भाई immovable property क्या होती है? Immovable property कोई भी property होती है जहां पर नंबर वन कोई which is permanently attached है to land, ठीक है, नंबर टू बेनिफिट्स उसके डिराइव्ड हैं लैंड से, नंबर थ्री एम्बेडेड है अर्थ पर, नंबर फोर रूटेड है अर्थ में, जैसे कोई बिल्डिंग। अब सारे उसके परमानेंट बेनिफिट्स जो उस बिल्डिंग से मिल रहे हैं, उसके साथ जो पाइप्स लगे हुए हैं, ड्रेनेज पाइप्स, जो उसके साथ बेनिफिट चिपका हुआ है, रिस्क चिपके हुए हैं, वो भी इमूवेबल है। वो ड्रेनेज पाइप्स, वो इलेक्ट्रिसिटी जिस केबल्स में फ्लो करती है, जो स्पेक्ट्रम मूव करता है, जो वायर्स में फ्लो होता है, वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड ये आप वैसे लिखोगे अंडर द मुकेश कुमार अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये केस में सिंपल था। गवर्नमेंट ने बोला, बेसिकली इस बंदे ने यूकेलिप्टस ट्री देखा है, व्हाइट कलर की उसकी वो होता है ट्रंक, तो बोला गया था उसने ट्री को काटा, और गवर्नमेंट ने बोला आप इस पर टैक्स दो हायर, क्योंकि हम इसको एज टिम्बर ट्रीट करेंगे। अब इसने बोला मुकेश ने, भाई इस पे मैं कम टैक्स दूंगा क्योंकि मैं तो इसको फायरवुड देखता हूँ, ठीक है। इस पे एक आपको इतना पता करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट एक कॉमन पार्लेंस टेस्ट यूज हुआ था। पार्लेंस इज जागन। जागन मतलब लेट्स से व्हेन आई से ओके, गवर्नमेंट के साथ दो पर्टिकुलर कंट्रीज ने कुछ अग्रीमेंट साइन करा। दिस इज नॉर्मल लेमन भाषा में एग्रीमेंट। दो गवर्नमेंट्स ने ट्रीटी साइन करी। दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉमन पार्ट, दिस इज अ पार्लेंस, दिस इज अ specific terminology that use a terminology is parlance। common parlance test यूज करा कोर्ट ने, बोला अगर आप एक ट्री को काट रहे हो जरूरी नहीं हर चीज उसकी टिम्बर निकले, वो फायरवुड भी हो सकती है, इसलिए मुकेश कम टैक्स देगा। so this was this case in this, ओके। बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें थी, जैसे लेट्स से अच्छा, जो आईपीआर में आती है चीजें जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, वो सब फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये चीज आप नोट डाउन कर लो। और अच्छा, लॉटरी, जो लॉटरी टिकट्स होती है ना, वो पहले तो बोला था एक वो है, गुड्स है, बट फिर बाद में बोल दिया कि वो गुड्स नहीं है, वो एक्शनेबल क्लेम्स है। सो दिस वाज दिस केस। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट एच अनराज केस। इन दिस पर्टिकुलर केस इट वाज सेड कि जो लॉटरी टिकट्स हैं वो गुड्स हैं, बट इन द अदर केस एंड दिस जजमेंट वाज ओवररूल्ड which was the Sunrise Associates case versus ESP products, ठीक है। So in this particular case, if you want the citation, if you're going to type out the words on the internet, you're going to get the citation for it and the full name। एच एन राज केस जहां पर बोला गया था कि लॉटरी टिकट्स जो हैं वो गुड्स है। सनराइज एसोसिएट्स वर्सेस ESP प्रोडक्ट्स वाली केस में इट वाज सेड कि दे आर एक्शनेबल क्लेम्स एंड दे आर नॉट गुड्स,
ठीक है। सिमिलरली जबलपुर केस हुआ था, यू कैन टाइप आउट ऑन द इंटरनेट एंड सी जबलपुर केस वर्सेस द स्टेट ऑफ वर्सेस ईएसपी प्रोडक्ट्स। इट वाज सेड दैट जो हमारी टीवी में जो स्पेक्ट्रम होता है, जो टीवी कनेक्शन होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, देन इफ यू वांट टू सर्च, देयर वाज आल्सो वन मोर केस, थिरुमुकुंड वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उस केस में था जो भी हमारे अनफिनिश्ड सिनेमेटोग्राफिक मटेरियल ना, अनफिनिश्ड फिल्म्स होती हैं, वो भी इज अ पार्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इफ यू आर गोइंग टू सर्च स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस थिरुमुकुंड। एंड एज फार एज आई एम एबल टू रिकॉल, अच्छा एक और चीज है कि आपको सेल के लिए फ्री विल चाहिए होती है। लाइक इज फ्री विल नेसेसरी फॉर सेल? ऑब्वियसली यू गोइंग टू से फ्री विल इज नेसेसरी फॉर अ सेल। अब फ्री विल कैसे मिलेगी? अच्छा, एक कुछ केसेस आए थे विच वर देयर, एंड उन केसेस में बोला गया था जैसे असेंशियल, जैसे लेट्स से यू आर, कुछ होते हैं ना, असेंशियल सर्विसेज एक्ट, असेंशियल प्रोडक्ट्स एक्ट, असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। सो एक केस था विच वाज न्यू इंडिया शुगर मिल्स वर्सेस द कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स बिहार। इसमें बोला था शुगर आपको गवर्नमेंट को बेचनी पड़ेगी, बट गवर्नमेंट को जबरदस्ती बेचनी पड़ रही थी। तो यहाँ पर ये बोला गया था कि बिकॉज इसमें बंदे का कंसेंट नहीं है, वो शुगर से जबरदस्ती बेचनी पड़ रही गवर्नमेंट को, तो इन दैट केस इट इज नॉट सेल, क्योंकि कंसेंट चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। बट दिस वाज ओवररूल्ड इन द विष्णु एजेंसीज वर्सेस द कमर्शियल टैक्स केस, जहां पर बोला गया था कि अगर आपको जबरदस्ती गवर्नमेंट को कुछ बेचना भी पड़ रहा है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू सेल ओनली। ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज गोइंग टू प्रिवेल, गवर्नमेंट ने जो कहा उसको मानना पड़ेगा। कॉफी बोर्ड कर्नाटका वर्सेस द कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स, इसमें भी कॉफी बीन्स बेचनी पड़ रही थी कर्नाटका गवर्नमेंट को जबरदस्ती। इसमें भी यही चीज कही थी कि अगर फ्री विल नहीं है, गवर्नमेंट को जबरदस्ती बेचनी पड़ रही है एसेंशियल प्रैक्टिसेस के तहत, तो वो सेल मानी ही जाएगी। तो बाकी मैंने सारे चीजें जो है वो कवर कर दी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे फाइनली बढ़ते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।